اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالعموم ضلع گجرات، ضلع گوجرانوالا اور ضلع سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں ان کی خدمت میں سرزمین گجرات سے سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو، میں اس وقت فرحان میرج آل والی چھت پر موجود ہوں، جس سے استاد چودھری باؤ ناصر اور استاد خلیفہ نومی جوڑا دونوں بھائی اکٹھے شوق کرتے ہیں۔ آج ڈیٹ 2022 کی پہلی اڑان ہے اور ہم اس وقت فرحان میرج آل والی چھت پہ موجود ہیں۔ دوستوں، چھت پہ منصف پہنچ چکا ہے، کبوتروں کو مورے لگانے کا پروسیس شروع ہو رہا ہے۔ آئیے ہیرا آپ کو دکھاتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ منصف سے بھی باتیں ہوں گی۔ ہاں جی، پہلے کبوتر نے مور لگ چکی ہے جی۔ ہاں جی، دوسرے کبوتر نے مور لگ چکی ہے جی۔ استاد نومی جوڑا صاحب موہراں لوا رہے ہیں جی کبوتراں نوں۔ راجہ زید جی والسلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی منصف صاحب آئے نے جی، بعد پھر منصف صاحب ہوراں نے گلاں باتاں ہون دیاں۔ فی الحال کبوتراں موہراں لگ رہی نے، دو کبوتراں موہراں لگ چکی نے جی۔ جی تیسرے کبوتر نے مور لگی ہے جی۔ ہاں جی، چوتھے کبوتر نے مور لگ چکی ہے جی۔ اچھا، مادیاں نوں موہراں لگیاں نے جی۔ ایک منٹ ٹھہرو۔ ایتھے اس خانے سے اگلے میں اگلے خانے چ ہو جا، میں ادھر ہی آن لگا جی، اندر بوا بند کر لو۔ استاد نومی جوڑا صاحب جی موہراں لوا رہے ہیں جی کبوتراں نوں، منصف صاحب لا رہے ہیں جی۔ اے پنجویں کبوتر نوں مور لگ چکی ہے جی، چوں مادیاں لگی ہے جی، اے پنجواں نعرے جی۔ چھویں کبوتر نوں مور لگ چکی ہے جی۔ ہاں جی، ستواں لگ گئی مور جی۔ کھولا جی بوا۔
11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 4 ਮਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ 10ਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ ਆਖਰੀ 11ਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇ ਮਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 2 4 6 7 ਨਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਬਾਬੂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। तो दोस्तों आपने मोहरे लगने का प्रोसेस देखा। इंशाल्लाह कबूतर उड़ाने के बाद हम मुनसब से भी आलवार लेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों उस दिन आपने देखा कि तकरीबन 23 या 23 तारीख को शाम को उस्ताद नोमी जोड़ा और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने चंद गुज़ारिशात आपकी नज़र रखी कि ख़ुसूसी तौर पर दोस्तों आप दोस्तों ने इस बात का ख्याल रखना है कि मुनसब के हवाले से बिल्कुल हमारे फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेट 2022 ये टूर्नामेंट जो है ये 2 फॉर्मेट में उड़ाया जा रहा है। एक 3 अज़ला का टूर्नामेंट है, उसमें 2 टूर्नामेंट है और इसी तरह एक ज़िला गुजरात की सतह पे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 17-18 साल से फरहान पिजन क्लब गुजरात से खुसूसी तौर पर ज़िला गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा एक शानदार और बड़ा बेहतरीन प्लेटफार्म उन्होंने मुहैया किया हुआ है। इस दफ़ा दोस्तों 3 अज़ला का जो टूर्नामेंट है जो कि ज़िला गुजरात गुजरांवाला सियालकोट वो 2 फॉर्मेट में है। एक 1 लाख रुपए एंट्री का टूर्नामेंट है और दूसरा टूर्नामेंट जो है वो 50,000 रुपये एंट्री वाला है। इसी तरह ज़िला गुजरात वाला जो टूर्नामेंट है वो टूर्नामेंट भी जो है वो 50,000 रुपये एंट्री वाला टूर्नामेंट है। तो दोस्तों उस दिन हमने कुछ चंद गुज़ारिशात मुनसब के हवाले से आप दोस्तों की मद्देनज़र रखी कि आपने ख़ुसूसी तौर पर उस दिन आपको बड़ी वज़ाहत के साथ ये बात जो है आपके सामने रखी गई थी कि मुनसब के हवाले से आपने मुनसब को तमाम क्राइटेरिया जो है टूर्नामेंट के क़वायद और ज़वाबित जो हैं वो उसके ज़हन नशीन होने चाहिए। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मुनसब का बर वक्त पहुँचना, आज यहाँ हम पहुँचे, मुनसब बड़े टाइम से यहाँ पहुँचा है। कबूतरों को दोस्तों मोहरें लग चुकी हैं, बाबू नासर साहब भी मौजूद हैं, उस्ताद नोमी जोड़ा भी यहाँ मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह दोस्तों फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेट 2022 के हवाले से आज हम कोशिश करेंगे कि विद इन गुजरात आपको उन पार्टिसिपेंट की छतों का विजिट करवाया जाए कि जो कि हमारे इस टूर्नामेंट में
شرکت کر رہی ہیں. میں پھر بار یہ بات دہراؤں گا کہ آپ دوستوں نے دوران ٹورنامنٹ منصف کے حوالے سے ہر خانہ مالک نے اس بات کا دھیان بھی رکھنا ہے, خیال بھی رکھنا ہے کہ منصف جو آپ بھیج رہے ہیں وہ تمام ٹورنامنٹ کا جو کرائٹیریا ہے, اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں, اس حوالے سے اسے بخوبی آگاہی ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے وزٹ کا مقصد ہی یہی ہوگا کہ ہم نے تمام چھتوں پہ انشاءاللہ دوران یہ 11 اڑانوں کے ٹورنامنٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بھاؤ جی آپ نے ٹورنامنٹ میں کتنے کبوتر پانے نے جی؟ 11. ہمارے ٹورنامنٹ کا جو مین کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ کبوتر کم ہونے کی صورت میں صرف آپ 11 کبوتر جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی تمام جتنے بھی رولز ریگولیشن ہیں وہ آپ کو میرے خیال میں ڈیوٹی پیپر کی شکل میں واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک پہنچا دیے گئے ہیں. میں پھر بار ان تمام پارٹیسپینٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے اچھے, بہترین, صاف شفاف اور خصوصی طور پر اپنی ذاتی حوالے سے آپ منصف بھیجیں. تو میں سمجھتا ہوں کھیل کا صاف اور شفاف ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ موسم نے جو ہے بڑی زبردست انگڑائی لی اور شروع چیتر سے لے کے آج تک ابھی کچھ 2 دن پہلے یہاں گجرات میں بھی ابر کرم برسا. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ 2 دن لوگوں نے, پرندوں نے, چرندوں نے, جانوروں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا. آج بھی اگر آپ کو دکھائے تو موسم بالکل صاف نظر آ رہا ہے. یہ اگر آپ آسمان کو دیکھیں تو موسم بالکل صاف ہے. تو دوستو یہ ٹورنامنٹ جو ہیں, یہ تینوں ٹورنامنٹ جو ہیں یہ 11 ناگوار اڑانوں پر تو تقریباً 4 منٹ دوستو باقی ہیں. انشاءاللہ یہ کبوتر اڑانے کے بعد دونوں بھائی جو ہیں استاد نومی جوڑا اور باؤ ناصر وہ دونوں کبوتروں کو دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں نے خصوصی طور پہ اس دن آپ کو منصف کے حوالے سے کبوتروں کو جو رنگ ہے اس کے حوالے سے آپ نے ضروری تاکید کرنی ہے اپنے منصف کو کہ وہ کبوتروں کا رنگ جو ہے وہ ضروری طور پر اس کی نظر اس پہ ہونی چاہیے. اس کے بعد خانہ مالک کے لیے ضروری ہے کہ 2-4 منٹ پہلے آپ موریں لگوائیں. 11 کبوتروں کو موریں لگوانی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ نے ان کی ویڈیوز بنانی ہے, ویڈیو بنا کے پھر آپ نے اس کو واٹس ایپ گروپ میں آپ نے پھینکنا ہے. اسی طرح جس وقت کبوتر رات شام تک بیٹھنے کے بعد جس وقت آپ کے مکمل کبوتر بیٹھ جاتے ہیں آپ منصف کو کبوتر چیک کروا کے دوبارہ اس کی ویڈیو جو ہے آپ نے وہ بنانی ہے. یہ 3-4 چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اڑان والے دن کا جو کرائٹیریا ہے اس میں کبوتر اڑانے کتنے بجے ہیں, چھت کتنے بجے کھلنی ہے, آخری ٹائم کبوتروں کا کیا ہے, چھت کھلنے کا کرائٹیریا کیا ہے, کس پوزیشن میں آپ نے چھت کھولنی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے منصف کو سمجھا بجھا کر بھیجنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کھیل کا یہ شعبہ اگر اس کی مثبت تعمیر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کھیل میں وہ شفافیت اور حسن آ سکتا ہے. تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی جنگلی کبوتر اڈے نے جی. تک تو نوبی بھائی نیٹ سروس ٹھیک ہی ہے میرا خیال ہے کوئی اور گجرات شریف استاد نومی جوڑا صاحب, استاد باؤ ناصر صاحب جی زوم کیتی ہے. یہ
कि आप देखते हैं दोस्तों के उस्ताद लोग भी जोड़ा बार बार घड़ी को देखते हैं, टाइम और उनके साथ जो है मुनसब भी खड़े हैं। इंशाअल्लाह ये कबूतर उड़ाने के बाद हम मुनसब का भी हाल हवाल लेंगे। और आज हम खुसूसी तौर पे गुजरात से जो छतें हैं इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उनका विज़िट करें और आपको तमाम हाल हवाल जो है, मैं फिर बार बार एक ही बात कहूँगा कि मुनसब के हवाले से हर खाना मालक ने ख्याल रखना है और ख़ुसूसी तौर पर टाइमिंग के हवाले से, क्यों कि सुबह 5 बजे कबूतर उड़ने हैं, 11 कबूतरों को मोहरें लगवानी है, आपने वीडियोस भी बनानी है, तो मुनसब का बर वक्त छत पे पहुंचना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। राजा जैद साहब जी इधर आ जा पुत्र, इतने आ जा। चलो ठीक है। तो दोस्तों जेठ 2022 निकल गए जी के कबूतर। इधर आते आते साइड जाओ जी देखते पाजी। हैं कि ये उस्ताद बाबू नासर और उस्ताद नोमी जोड़ा उन्होंने अपने कबूतर उड़ाए हैं। जी छटिया बड़िया बाजियां मार अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। तो दोस्तों ये आप देखते हैं कि फरहान मैरिज आल वाली छत से कबूतरों ने जेठ 2022 के हाँ हवाले जी से झंडी हो रही है उड़ान जितने जी। शुरू कर दी है। और ये आप देखते हैं कि छत के ऊपर जो है जल्दी टाइम जो है तकरीबन 5 मिनट है। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਕਲੀਅਰ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਅਲ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ 22 ਟੈਂਪਰੇਚਰ 6 ਵਜੇ 23 ਜੇ 7 ਵਜੇ 24 ਜੇ 8 ਵਜੇ 27 ਜੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਘੰਟੇ ਮਾਰ ਕਰੋਗੇ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ
तो दोस्तों मैं इस वक्त फरहान पिजन क्लब के बानी चौधरी बाबू नासर उनके साथ मौजूद हूँ। तो मैं चाहूँगा कि वो अपना पैगाम खुसूसी तौर पे फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेट 2022 के हवाले से आप दोस्तों तक कन्वे करें। आइए आगे मेरा तमाम अपने साथियों वास्ते कबूतर परवर भाइयों वास्ते एक ही पैगाम है, जिस तरह के कबूतर अमन की अलामत है, ये भी एक दूसरे खेलों की तरह खेल है, मुकम्मल गेम है। तो सानू चाहिए अगर असी ये बेहतरी वास्ते या ये अरूज वास्ते काम करना चाहते हैं तो सब तो पहले जोड़ा वो कानून की पासदारी होनी चाहिए है। और कानून की पासदारी तां ही हो सकती है जो सारे भरावां दा तावन होवे और हर बंदा कानून का एहतराम करता हो। नंबर 2 सब तो वध के मुनसफ नूं असी जिहड़ा रीढ़ की हड्डी है इस खेल की उन्होंने असी अहमियत ही नहीं देंदे। ये खेल तजाए मेरे सारे भाइयों अगे कि उन्होंने एक जज की हैसीयत नाल ट्रीट करो, उसकी इज्जत करो, तो जो कानून है उसके मुताबिक ही उन्हें फैसला करना है। कोई भी ना खुशगवार गल नहीं होनी चाहिए और ना कोई ऐसा वाक़या होना चाहिए कि जिहड़ा तुहाडे खेल के उत्ते जिहड़ा कि पुराने बंदे कबूतरबाज़ां नूं बंदा ही नहीं सन समझते। इनू हुण अगर खेल की हैसीयत हासिल हुई है तो सानू चाहिए सारे भाइयों नूं कि अमन की अलामत ही साबित होवे। मैं अपने सारे साथियों के उत्ते इतमाद भी करना और उम्मीद भी करना कि इंशाअल्लाह उल अजीज़ बहुत अच्छे तरीके नाल जेठ का मेला जिहड़ा अपने इख्तिताम नूं पहुंचेगा। और सब तो वड्डी गल है कि साडे च इन्ना हौसला होना चाहिए कि जिहड़ा भी मेहनत करता है और अल्लाह पाक उहदा साथ दिंदा है वो जित जाता है तो फिर उन्होंने पूरे तरीके नाल एप्रीशिएट किया जाए। और आखिरी पैगाम यह है कि इंशाअल्लाह उल अजीज़ असी अपना फरहान पिजन के ज़ेरे तमाम जिहड़े 3 कप ने उन्हों का जून के ही फंक्शन होगा नूर मार्की ते और असी सारे भाइयों को इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके नाल वेलकम करांगे। और जिहड़े चंद साल कोई गलतियां होंदियां रही ने उन्होंने वास्ते मैं माजरत खाम ही हाँ और आइंदा उन्होंने पुराना तरीकाकार ही नज़र आएगा। तो मेरी तरफ सब नूं वेलकम और अच्छियां बेस्ट विशेज़ दे नाल अल्लाह तो दोस्तों आपने चौधरी बाबू नासर साहब की बात सुनी। इसी तरह फरहान पिजन क्लब के रुए रवां बाबू जी ने एक बात की आगे कि मुनसफ जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो क्लब के हवाले से अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मेरा ये छोटा भाई ये भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। नबी भाई आप कोई पैगाम देना चाहेंगे दोस्तों को? नहीं लाला जी परसों पैगाम दिया था, मुनसफ का ही बोला था। इंशाल्लाह मुनसफ बंदे अच्छे भेजेंगे तो कोई मसले नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी तरफ से सारे प्लेयर्स को बेस्ट ऑफ लक है। पहली प्रवाज में खुश आमदेद और शुक्रिया अदा करते हैं जिन बंदों ने हिस्सा लिया, एतमाद का इजहार किया। 36 छतें हैं हमारे ज़िले वाले कप में और 23 छतें हैं लाख वाले कप में और 28 छतें हैं 50,000 वाले 3 ज़िलों वाले कप। तो दोस्तों आइए मुनसफ यहाँ मौजूद है। खुसूसी तौर पे मैंने इस दफ़ा हमारा जो विज़िट होगा उस दिन भी मैंने आपको कहा कि मुनसफ के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू हुआ करेगी इंशाअल्लाह। तो आइए दोस्तों मुनसफ से कुछ हाल अहवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम। तो केड़ी छत में आया तू? अफजाल दी छत तो राम तलाई। अफजाल राम तलाई दी छत तो आया जी। ते कितने कबूतर मोहरा लाइया ने? 11 कबूतर। 11 नूं जी। ते की कलर की है कबूतर दा? सब कलर लगे है, ठीक है। 4 मादियां ने 7 नार ने। हाँ मादिया नूं केड़ी साइड ते लगे यार? मादियां नूं खब्बी साइड ते लगे है, नरां सज्जी साइड ते लगे है। छत कितने बजे खुलनी है? छत 12 बजे ओपन हो सकती है। 12 बजे। जी हाँ। किस तरह खुलनी है छत? छत ऐसा बैन खुलनी है कि कबूतर जेह्ड़े तुसी बाहर कड्ढने ना वो कबूतर विच 5 जां कट्टियां होन जां बद्धियां होन 3 बारियां साबित होन बस। अच्छा ठीक है, इस वजह छत नहीं खुलेगी। अगर कोई नहीं खोलता, मेरा मतलब नहीं खोलना चाहता छत तो फिर नहीं खोलना चाहता फिर वो पूरी दिहाड़ नहीं खोल सकता। नहीं खोल सकते। जी हाँ। आखिरी टाइम क्या होगा? 8:30 बजे तक। 8:30। चलो ठीक, बड़ी मेहरबानी दोस्तों। तो इंशाल्लाह दोस्तों सूरज भी अपनी आबोताब के साथ आप देख रहे हैं निकल रहा है। और आज बाबूजी से मेरी बात हो रही थी
तो वो कह रहे थे कि लाला जी आज मौसम जो है वो आइडियल मौसम है, इस वक्त टेम्परेचर जो है तकरीबन 22-23 के करीब है। हवा भी सुबह उस तरह इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, नॉर्मल हवा है, मौसम आज आइडियल है। और मैं भी अपनी तरफ से, बाऊजी की तरफ से, नोमी भाई की तरफ से, हम उन तमाम पार्टिसिपेंट के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने जिस तरह भरपूर एतमाद का इजहार किया है फरहान पिजन क्लब की इंतजामिया पर। इंशाअल्लाह मैं अपने इन दोनों भाइयों से उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों, मैं अक्सर एक बात आप दोस्तों के सामने करता हूँ, पाकिस्तान का अमल और किरदार जो है वो उसकी वजाहत करता है। आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता, ये नहीं है कि मैं यहाँ अपने इन भाइयों में खड़ा हूँ तो तब मैं ये बात कर रहा हूँ। इन्होंने ऐसे नकूश छोड़े हैं, खास करके आपके खेल के हवाले से। आपने देखा कि गुज़श्ता साल इसी सरजमीन गुजरात पे, पंजाब की सतह पे कवानीन वज़ा किए गए और नूर मार्की में बैठक हुई और वहाँ उनको पाया तकमील तक पहुँचाया गया। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा खसूसी तौर पे उस्तादी शागिर्दी के हवाले से भी मैंने तमाम काबरीन से भी ये गुजारिश की है कि वो मिल बैठ के इस पे भी एक क्राइटेरिया तय करें ताकि खेल में पैदा होने वाली जो बदमज़गियाँ उनको दूर किया जा सके। मैं एक दफ़ा फिर अपनी तरफ से, बाऊजी की तरफ से, नोमी भाई की तरफ से, हम उन तमाम खिलाड़ियों के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने जिस तरह भरपूर एतमाद का इजहार किया है। और इंशाअल्लाह दोस्तों, जिस तरह आपने एतमाद का इजहार किया है उसका रिवार्ड आपको जून में इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो मैं फिर तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने इस शोबे को मजबूत बनाएं। तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि आपका ये खेल साफ और शफाफ ना हो। मुझे और हीरा को चंद लम्हों के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह आज हम आपको गुजरात से भरपूर शौक दिखाएंगे। और इसी तरह मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि मुनसफ के हवाले से इस दफा बड़े सख्त और बोल्ड फैसले लिए जाएंगे। तो आप लोगों ने इस शोबे पे ध्यान देना है। लाला जी को और हीरा को फरहान मैरिज हॉल वाली छत गुजरात से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।